लेसन 1 द लॉस्ट चाइल्ड। ये आपके मूवमेंट्स जो बुक है उससे लिया गया है। मैं श्रीमती कुसुमार आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जो सप्लीमेंट्री बुक्स है उसके लिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मुकुल राजानंद द्वारा लिखित है ये स्टोरी। इसका अर्थ होता है खोया हुआ एक कोई बालक है। तो एक बालक अपने माता पिता के साथ मेले जाता है। वह खुश है और उत्साहित है। वहाँ पर उसे प्रदर्शित मिठाइयाँ और वह खिलौने चाहता है, किंतु उसके माँ और बाप उसके लिए खरीदते नहीं हैं, जो फिर वह किसी दूसरे के द्वारा दिलाए जा रहे उनको लेने से भी इनकार करता है। और वह सिर्फ जब खोता है तो वह सिर्फ अपने मम्मी और पापा की याद करता है। तो इसके देखते हैं जो मूवमेंट्स बुक है। ये देखिए मूवमेंट्स बुक, इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास 9। ठीक है, ये एनसीईआरटी द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। इसको इसी में पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, कंटेंट्स हैं इसमें 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, द बैगर तक ही इसके जो है लेसन्स होंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, what are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? मतलब कि वह कौन सी चीजें बालक देखता है जब वह मेले में जा रहा होता है, वह पीछे क्यों रह जाता है? आंसर, द चाइल्ड सीज अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन हिज वे टू द फेयर। फर्स्टली ही से टॉयज लाइंड अप अ शॉप, then he saw a flowering mustard field which seemed like gold. In the fields of the child saw colorful dragonflies, butterfly their wings and sucking nectar. Then while walking on the footpath he saw insect and worms crawling. When he entered the grove, he could hear hissy doves cooing. As he neared the village he saw huge crowd going to the fair. The child also came across sweet sailors selling sweets like burfi and gulab jamun, and a flower seller who was selling a garland of gulmohar. Further ahead he saw a man selling rainbow colored balloons. He also saw a snake charmer who stopped playing a flute to sleep. Finally, before losing track of his parents, he saw a roundabout swing. The child often keeps lagging behind his parents on the way, and his mother and father have to constantly call him so that he doesn't lag behind. This is because the child is loved by all the things he sees on his way. Sometimes he stops to be buy toys, and at other times he stops to admire the beauty of the nature, collecting flowers and catching butterflies. मतलब बालक जो है मेले की ओर जाते वक्त वह सरसों के खेत देखता है, वहाँ की मक्खियाँ जो हैं, चिड़िया, वो सब देखता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो चलते हैं, वॉर्म्स जो हैं वो देखता है, और बरगद के वृक्ष पर वे उड़ रही हैं, वह उनके पास जाता है, इसीलिए वह पीछे रह जाता है। Question number 2, in the fair he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? मेले में वह बहुत सारी वस्तुएं चाहता है। वे कौन सी चीजें हैं वह उस और वह बिना लिए आगे क्यों बढ़ जाता है? आंसर, द चाइल्ड मैनी थिंग्स इन फेयर, दे आर फर्स्ट टॉयज एंड बलून्स। जो है बच्चा चाह रहा है कि खिलौने और उसे गुब्बारे चाहिए, स्वीट्स लाइक बर्फी फ्रॉम द स्वीट मीट सेलर, स्वीट्स भी हैं, गार्लैंड गुलमोहर फ्लावर, गुलमोहर के जो हैं फूल हैं, अट्रैक्ट बाय अ स्नेक चार्मर प्ले फ्लूटा स्नेक, मतलब जो सांप है वो भी उसको दिखाई दे रहा है बीन बजाते हुए। राइट इन
When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह ये कब जान पाता है कि उसने रास्ता खो दिया है, उसकी चिंता वह जो है किस प्रकार वर्णित की गई है। आंसर, he stops at the roundabout and wants to swing on a right. He observes it swinging with man, women and children enjoying themselves on it and suddenly realizes that he has lost his way. Watching kindly, he turned to his parents to ask for permission to go on the rounds, but there was no reply from them, and that is when he realizes that they were not there. He looked all around, but there was no sign of them. Tears rolled down from his eyes and started running in all directions looking for his parents. His yellow turban was untied and his clothes became untidy. He was screaming and was scared by the looks of the hefty men around. वह इस बात को जान पाता है जब वह करता है कि वह चक्कर वाले झूले पर सवार होकर चाहना चाहता है, मगर उसे उत्तर नहीं मिलता है। वह जान पाता है कि वह खो गया है। उसकी इस असुरक्षा की भावना उसको बुरी तरह रोने में वर्णित की गई है। वह विलाप करते हुए पुकारता है मम्मी और पापा। यह चिंता उसके कपड़ों के कीचड़ से सने कपड़ों में भी देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? तुम क्या सोचते हो कि वह क्या वो अपने माता पिता को मतलब पा लेता है? तो आंसर नंबर 4, द एंडिंग ऑफ दिस द स्टोरी इज ओपन फॉर अस टू डिसाइड. एट द एंड द पेरेंट्स who continuously make sure that he was with them right from the beginning of their journey may have suddenly realized that he was missing and come looking for the lost child. The helpful man who tried to console the little boy by offering him various things at the fair may have also asked him for the description of his parents and have him to be written with them at the fair receptions. हालांकि इस कहानी का अंत कुछ भी नहीं बताता। हालांकि इन परिस्थितियों में प्रायः एक बालक मिल जाता है। यह ग्रामीण मेला है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालक का अपहरण इत्यादि ये नहीं घटता है। हो सकता है कि पुलिस ने बालक के माता पिता को सौंप दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, why does the first child lose interest in the things that he had wanted earlier? मतलब जो बालक चाहता है, जो बालक उन चीजों में दिलचस्पी क्यों खो देता है जिन्हें वह पूर्व में चाहता था? आंसर, the last child loses interest in all the things that he had wanted earlier because he was frightened. His beginnings spared from his parents in the crowd. His aim was to find and be with them. All the things that fascinated him in the fair no longer attract to him, and now the only thing that matters is finding his parents. मतलब बालक अपने माता पिता के साथ था। वह खुश था कि उसकी कई चीज़ों में दिलचस्पी है। ये चीज़ें थी खिलौना, गुब्बारा, बर्फी इत्यादि। किंतु अब वह बिना माता पिता के साथ है, इसलिए वह एक गुमा हुआ बालक है। इसलिए वह इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखता। वह केवल अपने माता पिता को ही चाहता है। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग, पहला है डिस्प्लेड। डिस्प्लेड का अर्थ है दिखाए गए। इमर्ज, कम आउट यानी बाहर निकलना। क्लेड, CLAD यानी कपड़े, क्लोथ्स। ह्यूमैनिटी यानी मानव जाति, मैनकाइंड बोलते हैं। ब्रिमिंग, फुल ऑफ यानी लबालब भरा। फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, आकर्षित। फिर है लिगरिंग मीन्स रिमेन्ड बिहाइंड, पीछे रहा। देन रिसीडिंग, डिसअपीयरिंग, ओझल होते हैं। फिर है स्टेयर, स्टेयर का अर्थ होता है गेज यानी घूर कर देखना। फिर है प्लीडेड,
प्लीडेड मतलब है प्रार्थना करते हुए। फिर है टायरेंट मीन्स क्रूअल या निर्दयी। फिर है टेंडर, टेंडर मीन्स कोमल। फिर है टीमिंग फुल ऑफ भरी हुई। फिर ग्रेव ग्रुप ऑफ ट्रीज वृक्षों का एक झुंड। पेटल्स पार्ट ऑफ ए फ्लावर्स फूल की पंखुड़ियां होती हैं। आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ डिजाइनिंग बिल्डिंग यानी वास्तुकला। मर्मर्ड स्पोक इन अ लो वॉइस धीमी आवाज में बड़बड़ाना। HEAP हीप मीन्स ढेर। ओवरवेल्स यानी हेयर अत्यधिक। फिर है रिपलिंग, रिपलिंग का मतलब होता है पानी का बहना। होमवर्क, द इंग्लिश बुक ऑफ मूवमेंट्स, रीड द लेसन प्रॉपरली। आपको प्रॉपरली मूवमेंट्स की बुक निकाल के और उसको लेसन को पढ़ना है, ठीक। बी, प्रैक्टिस द स्पेलिंग, स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी है 5-5 बार, अपनी नोटबुक में लिखना भी है, ठीक है। तीसरा है राइट एंड लर्न क्वेश्चन एंड आंसर। आपको क्वेश्चन आंसर जो है दिए गए थे लिखना भी है और याद भी करनी है, और डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को भी लिख के और याद करनी है। थैंक यू।